what was your reaction that time जब the feed was getting all viral with your memes and they were saying कि he is getting viral because he is doing good things और उसमें ऐसा रहता है कि okay if someone is doing a good thing it's like oh he's Babil Khan. I didn't think so much about it. I felt a lot of pain at the start. I felt कि वो एक moment के लिए आपको लगता है कि आप victimize करते हो अपने आप को, but that passed very fast. So what was that point, you know, when you could see Pratyush in Babil? आई थिंक हमने जैसा हमारा प्रोसेस रहता है हमने सब ऑडिशंस ही मंगाए थे. आई मीन ही वाज जस्ट वन ऑफ द ऑडिशंस. ऐसा भी नहीं था कि मतलब इवन कास्टिंग डायरेक्टर वैभव ऐसा उसने अलग से हमें नहीं बोला था कि अरे इरफान खान का बेटा बाबिल. वो 5 मतलब एक फाइल आई थी हमारे पास उसमें 5-6 ऑडिशंस थे उसमें से एक था. Have you ever feared social media? Yeah, of course. But also social media is again a great tool to promote creativity. Of course. It has its really essential positives जो हम हमारे ऊपर हम कैसे इस्तेमाल करें. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाँ, मैं उन्हीं के साथ बैठी हूँ जिनसे पूरा मेल कम्युनिटी एक टाइम पे डरा हुआ था और जिन्हें पूकी, ग्रीन फॉरेस्ट, सिम्प ऐसे सारे वर्ड्स मिले थे क्योंकि ये वायरल हो गए थे अपने अपनी गुडनेस की वजह से. ऑफ कोर्स बाबिल. एंड अभी ये लॉग आउट होके बहुत नए रूप में दिखने वाले हैं बिकॉज वी हैव द कैप्टन ऑफ द शिप आल्सो विद अस. सो वेलकम टू इंडिया फोरम्स. थैंक यू. Thank you for that lovely introduction. Thank you. I'll come to that only. Yeah. What was your reaction that time जब Yeah. the feed was getting all viral with your memes and they were saying कि he is getting viral because he is doing good things और उसमें ऐसा रहता है कि okay if someone is doing a good thing it's like oh he's Babil Khan. I didn't think so much about it. I felt a lot of pain at the start. I felt कि वो एक moment के लिए आपको लगता है कि आप victimize करते हो अपने आप को, but that passed very fast and then the memes were also very funny. So I laughed a lot. Like they were really good memes. Exactly. नोबिता का एक meme था वो मुझे बहुत पसंद आया. And so many relatable things. मतलब if someone is doing something good कुछ अपने उसके लिए flowers ला रहे girlfriend oh are you Babil Khan? yeah. But yeah, some things hurt. It did hurt, but honestly that was only because I was making myself feel Overthinking it? No, I was putting too much importance. I'm not like I was giving to myself too much importance. Right. I was not. The beauty of life is to be able to laugh at yourself, right? Like the moment I just was like let go, then I could laugh at myself and I could laugh at the memes and I could enjoy with the trollers. Right. You know? Yes. Coming to the film, of course, I saw it. It's amazing. Thank you. And the way it has ended in parts, जिस तरह से हुआ है, it's done very well. So sir, I want to talk about the symbolism in the film. जो बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो I guess not everyone will notice in the first watch, but I guess तुम एक साथ बैठ के देख लो तो it comes to your mind, like the whole the rat thing, it getting caged in that. Especially the end when that child posts a picture with Pratyush and the whole life thing. तो जिस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ें यू हैव शोन, डिड यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट कि यू वांट टू शो द सिम्बलिज्म इन अ डिफरेंट वे या ये चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो रही थी एंड एट द एंड आपको भी सरप्राइज लगा कि हाउ वेल इट हैज़ कम आउट? आई थिंक हमारा प्रोसेस हमेशा फिल्म मेकिंग का वैसा रहता है कि वी स्पेंड द मोस्ट टाइम ऑन राइटिंग. सो जो भी इस तरह की लेयर्स होती है जो आपने बहुत राइटफुली नोटिस की एंड आई एम ग्लैड यू सेड कि लोगों को मल्टीपल टाइम्स देखनी पड़ेंगी तो Z5 के लिए एक्स्ट्रा व्यूज आएंगे. बट आई थिंक हमारा प्रोसेस ऐसा रहता है कि वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग. तो मतलब हमारे लिए ये नहीं रहता कि एक बेसिक स्टोरी कर दी फिर देखेंगे. मतलब हम उतनी ही डिटेल में राइटिंग स्टेज पे चले जाते हैं एंड उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी उसी स्टेज पे पूरा थिंक थ्रू करते हैं. मतलब लाइक द लास्ट सीन यू मेंशन टू द रैट वाला पूरा सिम्बोलिज्म एवरीथिंग was set before hand only on writing. मतलब वो एक बाउंड स्क्रिप्ट थी जिसको लेके फिर हम बाहर निकलते हैं. तो आई थिंक वो हमेशा से बाय डिज़ाइन ही वैसा था कि हम उस तरह से उसको करने वाले. दोज लेयर्स वर ऑलरेडी प्रेजेंट बिफोर वी इवन स्टार्टेड शूटिंग. Coming to you, Babil, so you have not had a very loud debut, massy film.
You have been doing very rooted, layered roles. Soft. आप लेबल्स डाल रही हो पिक्चरों पे नहीं, मुझे तो मेरी कमर्शियल लगती है बहुत But very meaty roles. जो Yeah. roles हाँ. या जो characters होते हैं वो काफी meaty होते हैं. जी 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 So of course I want to know with this one, how much did you put yourself into the character? आप किस तरह से do you go for method acting or you have to sit hours and block your mind कि मुझे एक influencer play करना है तो this is what I'm gonna do. मेथड एक्टिंग आपको क्या लगता है क्या होती है? As we मतलब you have to go through the character of course. But any actor would do that for any role. Right. I think it's not about method acting. I think it's more about being sincere and being honest to the story. Yeah. वो हर फिल्म या सीरीज आप जो भी काम करो एज एन एक्टर, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने से आप एक्टर के बारे में नहीं सोच रहे हो अब Yes. मैं एक्टर हूँ, यू हैव टू हर स्टोरी आपको खुद की जर्नी देगी. True. यू हैव टू सरेंडर टू द स्टोरी. Of course. तो And- वैसे ही उसमें वो मेथड तो वो बहुत ही अलग, स्टानिस्लाव्स्की ने स्टार्ट किया था, वो कुछ एकदम ही वो हो चुका है, बहुत डाइल्यूट हो चुका है वो. Of हाँ. Sir, also coming to you with this, आपने भी एक नए डायरेक्शन में you have entered with the whole direction thing and everything. So how much different it is because जो sketches and all कर रहे हैं आप, जो shows के लिए you have worked, of course the story is the same thing, but with the mediums getting different, things getting different, and इस idea को एक अलग audience को पहुंचाना है आपको, तो how things were different and आपने किस तरह से approach किया उसको? आई डोंट थिंक हमने इसको बिल्कुल भी डिफरेंट तरीके से अप्रोच किया. आई थिंक वही हमारी स्ट्रेंथ भी रही है कि Right. इवन इफ इट वाज अ स्केच 10 years बैक या 2 साल पहले काला पानी में जब बड़े स्केल पे कर रहे थे या फिर एक रूम में एक मूवी कर रहे थे, आई थिंक हमारी अप्रोच कभी भी चेंज नहीं होती है. बिकॉज आई थिंक जब भी हम उसके बियॉन्ड स्टोरी की क्या रिक्वायरमेंट है और इन दैट मोमेंट टेक्निकली क्या रिक्वायर्ड है उसके बियॉन्ड कुछ सोचने लग जाएंगे तो Right. इट विल बी अननेसेसरी प्रेशर ऑन आवरसेल्व्स. सो हम हमेशा सीन को सीन की तरह ही देखते हैं, भले ही वो अब स्टॉर्म में एक नाव चल रही है, एक रूम में एक बंदा बैठा और कंप्यूटर के सामने कुछ कर रहा है. Right. आई थिंक वही यू हैव टू गो लुक एट द सीन, लुक एट क्या इसका इंटेंट है, देन वही कोलैबोरेटिंग विद द एक्टर विच इज़ आई थिंक डायरेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट काम. सो जब तक आप वो चीज़ें ऑनेस्टी से कर रहे हो, आई डोंट थिंक मीडियम इतना मैटर करता है. आई थिंक हमारे स्केचेस भी शुरुआत में इसलिए हिट होते थे क्योंकि हमारे एक्टर्स बहुत अच्छे हुआ करते थे और उनके साथ कोलैबोरेट करते थे, ऑनेस्टी से करते थे, वो होता था. आई थिंक आज की डेट में भी जितने भी बड़े हम शोज या मूवी कर रहे हैं उसमें कोलैबोरेशन एंड ऑनेस्टी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट. Right. So what was that point, when you could see Pratyush in Babil? आई थिंक हमने जैसा हमारा प्रोसेस रहता है, हमने सब ऑडिशंस ही मंगाए थे. यानी ही वॉज जस्ट वन ऑफ द ऑडिशंस. ऐसा भी नहीं था कि Right. मतलब इवन कास्टिंग डायरेक्टर वैभव ऐसा उसने अलग से हमें नहीं बोला था कि अरे इरफान खान का बेटा बाबे. वो 5 मतलब एक फाइल आई थी हमारे पास, उसमें 5-6 Right. ऑडिशंस थे, उसमें से एक था. एंड हमने बिल्कुल ही किसी भी और ऑडिशन को जैसे देखेंगे वैसे देखा था. एंड वही मैं पहले भी कह रहा था कि इसकी मतलब बाबिल का आई थिंक एक इनेट एक कुछ टाइमिंग है जिस तरह से कई चीज़ें ये लेता है विच इज़ वेरी यूनिक. Yeah. वो कुछ एक्टर्स में होती है, आई थिंक वो बहुत इंस्टिंक्टिव ऑफ बीट टाइमिंग है जो इसकी आती है. एंड आई थिंक उसको हमने भी कोशिश नहीं की छेड़े क्योंकि इट्स वेरी हार्ड फॉर Yeah. अस टू डिस्क्राइब टू एक्टर कि ऐसे कर. वो अगर वो कर पाता है तो वो कर लेता है. तो इन दैट ऑडिशन वी रियली वर मूव्ड बाय दैट. उस ऑडिशन में इसने जिस तरह से चीज़ें की थी, देन वी मेट हिम. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि कितनी सिंसेरिटी से ही वॉन्टेड टू अप्रोच द स्क्रिप्ट. एक बार रीडिंग वगैरह की एंड देन आई थिंक दैट्स व्हेन वी न्यू कि हाँ यही है. Pratyush. So I want to know from you कि as Pratyush उसकी लाइफ के अपने ही there are things which are उसके तलवार लटके हुए सर पे, उसको फॉलोअर्स देखने हैं अपने, he has competition with them, उसको अपना content बनाना है, everything, he has all those things. As Babil Khan, what are the things about the whole current situation, social media, the PR game, the PAPs, everything जो भी सब कुछ चल रहा है, उसमें से how do you want to deal with these things and ये कितना आप पे impact करती है as an actor? पहले जब मैं पहले करती थी, अब
मैंने एक्चुअली मैं ऐसा ही हूँ, मतलब मुझे वो, मैं सच में पहली बार जब पैप्स के सामने गया तो मुझे मैं जैसे लोगों से हाथ मिलाता हूँ, मैं हाथ मिलाने चला गया। मेरे को किसी ने ट्रिमिंग दी नहीं थी कि ऐसे नहीं करते आप पहले पोज करते हो। तो वो कुछ इट बिकेम अ थिंग, लाइक इट बिकेम अ लेबल। वो तो मैंने एक्चुअली जो भी कुछ किया है वो इतना सोच के नहीं किया, इम्पल्स पे किया है। तो वो लाइक वो मैं इसको स्ट्रैटेजाइज करके वो बता ही नहीं सकता, बट हाँ लाइक वो जैसा हूँ वैसा मैं आई जस्ट ट्राई टू बी एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। वो मैं वो इतना नहीं सोचता कि हाँ ये पैप्स में मैं ऐसे करूँगा, वो वहाँ ऐसे करूँगा। उसके लिए इतनी बड़ी टीम है वो सोचती है, मैं तब भी नहीं सुनता। Fantastic. कैमरा But- टर्न हो सकता है। But have you ever feared social media? Yeah, of course. But also, social media is again a great tool to promote creativity. Of course. It has its really essential positives. जो हमारे ऊपर हम कैसे इस्तेमाल करें। अब मैं पोएट्री की, अब मेरे को बहुत डर लगता है पोएम डालने में। वही आपने लोग जैसे कहा, cryptic message बना देते हैं। हाँ वही आपने जो कहा ना, आपने स्टार्टिंग में कहा ना, तो वो ट्रोलिंग के टाइम वो जैसे मेरा पोएट्री की भी बैंड बज गई थी सब कुछ। तो अब जैसे अब मैं डालता हूँ तो मुझे डर लगता है, लेकिन मुझे पता है कि दैट इज़ माई एक्सप्रेशन, दैट इज़ माई आइडिया अबाउट समथिंग एंड दैट इज़ हाउ आई विल एक्सप्रेस इट। Yeah. अब डर के चुप थोड़ी। हाँ एग्जैक्टली। Of course. And of course, not giving any spoiler or too much in the film, but have you ever had a fan encounter which was ऐसा? creepy? क्रीपी ऐसा नहीं, but क्रीपी स्पॉयलर्स भी देने, बस ध्यान रखना। हाँ। आपका हुआ है सर? मेरे को तो नहीं मिले हैं ऐसे फैंस। ऑफ स्क्रीन वालों के इतने नहीं होते, ऑन स्क्रीन वालों के होते हैं। नहीं मेरे क्रीपी एनकाउंटर्स तो नहीं हुए हैं कभी, बट something weird या different which जो आपको याद हो? यार मैं ही वियर्ड और इतना curious हूँ, मैं क्या किसी को जज करूँ। मैं तो कूद जाता हूँ लोगों के, लोग ही बोलते कि they are only not expecting me to come. So how you'll react? Yeah. Thank you so much guys for your time Thank you. and all the very best one. Thank you. Thank you. Thank you.